वेलकम टू वर्क इन विजडम एंड दिस इज़ योर होस्ट असफर हसनैन। और इस चैनल पे हम बेसिकली अब एचआर प्रोफेशनल्स की लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड उनके एचआर एक्सपीरियंसेस उनकी सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। और सो वी आर गोइंग टू हैव आवर फर्स्ट गेस्ट मिस्टर जैन बेग। प्लीज वेलकम टू द चैनल। So, Assalamu alaikum. welcome Islam. So, Mr. Zain Bey, can you please introduce yourself? Of course, I'm Mirza Zain Bey. I am the current CEO of Mughal Autos, which is my own venture at this point in time. A few of my hobbies are that I currently like to pursue is swimming, MMA, some martial arts is something that I do in my free time, and I like cycling. Aside from that, I love pizza, and I love exploring the world, its cultures and languages and food. So, basically आपने ग्लोबल लाइफ में भी आई थिंक काम किया है एज एन एचआर। Yeah, of course, I have worked in Globe Life as an HR. और देखिए आपकी मैंने प्रोफाइल स्टडी किया, मुझे जब आपने मुझे पता लगा कि आपने पहले आई थिंक आपने स्टार्ट क्या कहते हैं आईबेक्स से किया था। तो हाउ वाज योर लाइक ट्रांजिशन फ्रॉम गोइंग टू एज अ कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट टू फ्रॉम टू एन एचआर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट एंड देन आफ्टर यू आर नाउ owning your own business. So how was this transition to you? The transition was actually starting with it was very tough. It wasn't that easy. And as time progressed, it became easier for me as I went through the hardships within the first phase of that. When I was working in IBEX, I was actually, I had 3 hours of sleep and I worked almost 9 hours a day. Plus, in the daytime, I had my university, which consisted of 9 hours as well. So, yeah. So मुझे आप ये बताएं कि देखें एज एन एचआर जो आपकी कहते हैं ग्लोबल लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा था आपके वहाँ पे लाइक एनवायरनमेंट और आपके कहते हैं एचआर का एनवायरनमेंट जैसे होता है वो उसके बारे में जो कुछ बताएं आप। ज़रूर ज़रूर उनका बेसिकली Globe Life is actually a Fortune 500 company. Within the US, there are 500 companies. There's a list of 500 companies that are on the top. उनसे ज़्यादा टॉप पे और कोई भी नहीं है US के अंदर. So it's one of those companies, and it's actually a life insurance company which has been around for more than 100 years. So the environment over there was quite, it was actually positive. I had a lot of meetings in one day and a lot of training sessions, as we had to be updated to the most updated information that was actually out there. Since the world is ever changing and it's updating every single second, and the information is being updated, and you know how it's moving forward, we had to catch up to that, and we had to be that skilled to be there. So it was overall the best experience I had. एग्जैक्टली अगर मैं खुद देखा देखूँ तो प्रोफेशनल लाइफ इज़ लाइक ऑलवेज चेंजिंग। और हम एज एम बी ए स्टूडेंट लाइक हम स्टडी करते हैं एच आर एम एंड एस एच आर एम। दीज आर थ्योरेटिकल स्टेप्स। व्हाट यू कैन से दैट कि कहते हैं क्या ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ना एक्चुअली वर्क लाइफ में कहते हैं इम्प्लाइड होते हैं कि नहीं होते? I believe that regarding this question, I would say कि जो theoretical information हमें मिलता है ना अपने teachers वगैरह से, वो हमें absorb करना चाहिए. जो जहाँ पे contradiction ही आती है, हमारे पास वो playing field नहीं है उन actually tactics को apply करने के लिए. I believe that's the main important part over here. So in my opinion, yes, they do help us, but they will never help you unless you learn how to apply them within actually the practical field itself. फिनलैंड में जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनका आजकल लर्निंग मेथोडोलॉजी चल रही है, वो यही है कि आपको वो प्रैक्टिकल रनडाउन्स करवाते हैं, सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई दोज और आप अपनी मिस्टेक्स देखो और उनसे सीखो. सो विद इन द होल प्रोसेस अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यूनिवर्सिटी में सीखी थी. आई एम फॉर्मेनाइट, आई एम अ प्राउड फॉर्मेनाइट, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड एज वेल. तो या व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई इंस्ट्रक्टर्स एट द टॉप ऑफ देयर फील्ड, I was able to apply them within my own family business. There are only 2 things required for this. First, the mindset to do things, and second, the knowledge. That's all. बिल्कुल बिल्कुल मैं इस पर अग्री करूँगा, क्योंकि अक्सर होता है कि ना हमें हमारी सोसाइटी में यही चीज़ कही जाती है कि वो एक तुम थ्योरेटिकल चीज़ थी वो डिफरेंट थी, आप प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट होगी, फिर आप तो प्रोफेशनल लाइफ इज वेरी डिफरेंट, आपको थ्योरेटिकल थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, दैट डजंट मैटर एक्चुअली। वो कहते हैं ये आप जो है ना करके बहुत ज़्यादा ना न्यू जो रिक्रूट्स होते हैं स्पेशली उनको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं अंडरमाइन किया जाता है। आई थिंक इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ बोथ कि एचआर के अंदर अगर हम थ्योरीज की बात करें, हम प्रैक्टिकल्स की बात करें, तो आई थिंक बोथ प्लेज एन इक्वल रोल. Do you agree with me about this, or do you have anything to say about it? Regarding this, I actually have a very hard and fast opinion, because people normally don't pay attention in class, क्योंकि जो teaching methodologies है वो, let's just admit that, पुरानी हो चुकी हैं. अपडेटेड करिकुलम कहीं भी नहीं है. अब
as I'm a Formanite as well, I was lucky enough to study in an institution which was actually upgrading its teaching methodologies day by day. उधर आपको independence दी जाती है to select your own courses, select your own pathway, ताकि आप खुद देखो अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो आप अपना path खुद ही correct करो. उधर आपका advisor available होता है आपको advice करने के लिए. तो I believe कि आपको जब तक आपके पास knowledge ना हो ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. अगर आप फील्ड में जाते भी हो ना, you'll make mistakes, but you'll learn from them. अगर आपके पास वो नॉलेज पहले से हो ना, तो you wouldn't have to make that mistake again. मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल लेट्स से there's a problem you're gonna face in the future, और आपको पढ़ाया जाता है कि आप वो प्रॉब्लम फेस करोगे. I'm gonna make that mistake क्योंकि आपको याद होगा Exactly. क्लास के अंदर ये मिस्टेक मैंने नहीं करनी है. ये हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग लेसन है. एग्जैक्टली. अगर आप नॉर्मली क्लास में पे अटेंशन करना शुरू कर दो, आपके अगर इंस्ट्रक्टर्स आपको प्रैक्टिकली समझाएं करके कि यार चलो, मतलब एक इंस्ट्रक्टर आपको कहे आ जाओ यार आज गार्डन में चलते हैं, लेट्स गो ओवर देयर एंड आई टीच यू न्यू थिंग्स. एक एटीट्यूड होता है, एक माइंडसेट होता है, दैट डजंट एग्जिस्ट विद इन अ सोसाइटी वेल करंटली इन पाकिस्तान इन माय ओपिनियन. दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट डजंट एग्जिस्ट. इट माइट, बट द सोसाइटी एक्चुअली गेट्स यू टू अनदर माइंडसेट कि आपने सिर्फ पढ़ना है, आपने सिर्फ ग्रेजुएट होना है और आपने निकलना है बस. अगर आप देखो जितने भी वर्ल्ड के बिलियनियर्स वगैरह हैं, जो हार्ड वर्किंग पीपल हैं, इलॉन मस्क हो गया, लोगों ने बड़ा डाउट किया था उसे. अपनी फैक्ट्री में बंदा सोता था, उसने इतनी मेहनत की, इस पॉइंट पे आया, ही गॉट सो ऑब्सेस्ड विद द जॉब, ही एक्चुअली अचीव्ड थिंग्स. एग्जैक्टली. जैसे कि हम लाइक ना बहुत दुनिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है. इट इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट एंड लाइक इन द फील्ड ऑफ एआई स्पेशली. तो अगर हम एआई की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस एट ग्लोबल लाइफ पे आपने कहते हैं एआई की इम्प्लीमेंटेशन कैसी थी? So the implementation of AI was like in times so हमारा जो फ़ोन स्क्रीनिंग प्रोसेस एक इनिशियली होता है, उसके अंदर हम लोगों ने AI को ऐड करना शुरू कर दिया. ठीक है, where candidates would be learning about us, they would be actually contacting us through our number, or that would be redirected to the AI. The AI would be responding to the candidate and then scheduling them for a phone screening process. Once that was done, फ़ोन स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर 2-3 रिक्वायरमेंट्स होती थी कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उनका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, एंड दे शुड हैव बीन लाइक मतलब एक सीवी का एक पैटर्न. एग्जैक्टली. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था आपसे कि बेसिकली आपका ग्लोबल लाइफ पे जो अच्छा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, लाइक व्हाट वाज दैट, हाउ वाज दैट, लाइक आप किस तरह से कहते हैं, किस स्टेप बाय स्टेप के एक तरह से क्राइटेरिया पे जाते थे जिस पे आपने कहते हैं रिक्रूट करते थे? ऑफ कोर्स. सो फर्स्टली एज आई जस्ट सेड कि उनको रीडायरेक्ट एआई करता था, अपॉइंटमेंट सेट होती थी, इनका फोन स्क्रीनिंग प्रोसेस होता था, तो वी वुड कॉल देम अप, हमारे सामने उनकी सीवी होती थी, दे वुड ईमेल अस दैट एंड वी वुड बी व्यूइंग दैट. ठीक है, बिफोर कॉलिंग वी वुड व्यू दैट, हम देखते कि आर दे एलिजिबल ऑलरेडी और नॉट. ठीक है, मेजर रिक्वायरमेंट्स यूएस के अंदर ये हैं कि यू शुड बी एबल टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश इज कम्युनिकेशन इज की. बिकॉज ऑन द फोन स्क्रीनिंग प्रोसेस आप सिर्फ लोगों से बात कर रहे हो, और इट्स नॉट जस्ट दैट उनका मतलब मूड वगैरह, आपकी वॉइस से बहुत कुछ पता चल जाता है आपके बारे में. इट टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट द पर्सन in a 3-minute conversation is enough to tell what a person is thinking and what is the current state of mind of that person, और उनकी personality कैसी है. ये बड़े आराम से पता चल जाता था at that point, क्योंकि we used to talk to at least 300 or 400 candidates per day. और this is just a phone screening process. कि आप American, उनकी requirements थी, no criminal record, US nationality, and even if you weren't in US nationality, you wouldn't require visa or anything like that. आपका, और you should have been like proficient in English. ये requirements के बाद उनका like intensive 4 more interviews होते, like on Zoom meetings. जो recruiters होते हैं ना, वो note करते हैं कि आप किस टाइम पे आ रहे हो. पाकिस्तान में तो ये है ना कि अगर आप उनको 10 मिनट को, तो आपका अगर इंटरव्यूअर ही 10 और 15 मिनट्स लेते हैं, उधर नहीं होता. They actually view कि आप टाइम पे आए हो या नहीं. That is the deciding factor if they're gonna hire you or not. Okay. Firstly, I believe that to have an open mindset of learning is very important. At this point in time, employers, what they require is someone who's willing to learn. What I used to do was that I absorbed all of the important things that the business or the position actually offered. Once I was done cultivating those skills, I would move on to another company. I would look for another job. बिल्कुल. और स्किल से मैं आपको उसको मूव करूँ कि जब आप देखें आपने एक ट्रांजिशन किया, आपने फ्रॉम वर्किंग इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, you transition to like being an owner of your own like business. So कौन से ऐसे skills जो आपने as a working as HR you learned और आप अप्लाई कर रहे हैं उसको as being an owner of your own business? To be honest, it's a very plain answer. It's communication. Communication is key to me as a graduate of marketing and sales.
what I learned throughout my whole career was communication. अगर आपका communication straightforward है, आप अपना message convey करना आपको आता है, you're done. आपको बहुत कुछ कर सकते हो. Listening is a very great skill. It's not all just about talking. I'm having this conversation with you. When you talk, I listen to you. I give you that space where you're comfortable to actually speak. अगर ये आप किसी को apply करोगे ना, ये बहुत unique skill होती है. It's very simple and it's very deadly as well. अगर आप किसी की बात को सुनोगे, it's very captivating. आपको याद रहेगा जब आप नोटिस करोगे ना एक दो चीज़ें, that person will have respect for you. ठीक है, वो इंसान एक तो आप उसका ट्रस्ट इनिशियली ऐसे ही ले लेते हो जब आप उसको सुनते हो, ठीक है. उसके अलावा आप उससे जब बात करते हो तो आप उसे अपनी मनमानी नहीं करते कि ये कर लो. आप उसे एक ऐसा ओपिनियन देते हो कि उसके ओपिनियन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करें. अगर करता भी हो ना तो यू से आई अंडरस्टैंड एंड हियर इज समथिंग आई वांट टू ऐड टू इट. थिंग्स वर्ड्स मैटर. अगर मैं इसी स्टेटमेंट में आपको कहूँ बट, तो भाई दैट चेंजेस द होल कॉन्वर्सेशन. इधर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है. सो वर्ड्स मैटर. जो मैंने अब अपने वेंचर जो मेरा अपना है उसमें जो मैंने स्किल्स यूज़ किए हैं, फर्स्ट वर्ड कम्युनिकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस हमारी जनरेशन और हमारे मुल्क में वर्क लाइफ बैलेंस लोगों को नहीं पता. जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोगों के पास है. एंड अभी देखें, अब इस कॉन्वर्सेशन में मैंने एंड यूज़ किया, हमें एड ऑन करा, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, और अगला वो सुनता भी है फिर बात. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज के when people actually listen to you, it's a sign that you have that capability. Mindset is important. आप अगर अपना पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते. You're gonna fall every day. आप हर रोज़ गिरोगे. But now there is a contradiction. हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है ना, जब भी वो गिरती है ना, वो कहती है हम घर बैठे रहें और काम हमारा चलता रहे. It's not how the world works. आप मेहनत करते हो, आपको कुछ मिलता है. आप स्मार्ट वर्क करते हो, आपको कुछ मिलता है. तो कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड कीप क्लाइंबिंग. आप गिरो, climb another 1,000 steps, because there's always going to be a person who's going to keep climbing when you're not climbing. ठीक है, either you work in your own rhythm या फिर आप दूसरों को देख के चलो. My take on this is कि आप अपने आप को देख के चलो. अपना पाथवे ना खुद ही कस्टमाइज करो कि आपने किस तरह अपने आप को लेके चलना. एग्जैक्टली. मैं तो एक कोट ऐड करने पर चाहूँगा कि हमारे टीचर से हमें ये कहा करते थे कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. सो इट्स लाइक आई कैन रिलेट द दैट एज वेल. अदर देन दैट, अब आप एज अ सीईओ ऑफ मोबाइल आउटर्स, व्हाट इज योर लाइक रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया? लाइक आप खुद किस तरह से कहते हैं लोगों को आप रिक्रूटमेंट करते हैं, तब किस तरह से आपका क्या क्राइटेरिया है, आपके क्या प्रोसेस है, और आपने क्या कुछ आपने जो आप मुझसे बताया कि आपने काफ़ी स्किल्स सीखे हैं, तो how you're now applying that knowledge from Globe Life to your own business? So basically what I'm doing is that firstly मैं candidate का phone screening process लेता हूँ. As I've mentioned before कि उधर phone screening चलता था. phone screening is कि आप फ़ोन के ऊपर ही आप अपने candidate को judge कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम एक second interview करवाते हैं where we actually meet the candidate in person. हमारे basically जो business का था, we were actually wanting to give opportunity to kids. We didn't want old people in the field, so हमारा age bracket obviously था from 18 to 25. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में basic education metric है. They should be metric pass. और फिर हम for the job security purposes हम लोग there is a character certificate that the police actually provides. आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जा सकते हो, you give them a certain amount, और वो आपको एक character certificate बना के देते हैं. अब तो ऑनलाइन भी बन जाता है, तो उससे ये होता है कि आपकी श्योरिटी हो जाती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. तो once we have these 3 check points met, तो हम एक थर्ड इंटरव्यू करते हैं कैंडिडेट का. हम उसके एक्सपेक्टेशंस पूछते हैं, व्हाट कीप्स देम मोटिवेटेड, और उनका स्केड्यूल क्या है, ताकि उनका जो वर्क लाइफ है ना वो इजी रहे. अब फॉर एग्जांपल जो आजकल एक नॉर्मल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बंदा है, उनकी पे है 26,000 मिनिमम, 26,000, out of which what we actually do is we pay them 200 per day just for lunch, or if they're wanting their salary per day, we do give them that as well. तो अभी जो फ्यूचर एचआर प्रोफेशनल्स होंगे, अभी काफ़ी लोग जो हैं दे आर लुकिंग फॉर लुक फॉर जॉब्स, एमबीए हायर्स, एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, जो बैचलर ग्रेजुएट्स, बीबीए ग्रेजुएट्स, बट भी लाइक कोई एडवाइस आपके पास कोई हो जो कि आप अपने रहते हैं न्यू एचआर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जो कि अभी कहते हैं जब हु आर परसुइंग फॉर एचआर प्रोफेशन? मास्टर कम्युनिकेशन. एचआर के अंदर अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द अदर पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अगले बंदे की साइकी नहीं समझोगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉइस वगैरह नहीं समझोगे,
आपको कहीं नहीं पता चलना. You're gonna misinterpret what you're saying and what they're saying. Again, we tie this back to communication. So I believe that जो आपकी HR की जनरेशन है उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत नेसेसरी है. ये वो चीज़ है जो AI नहीं आपके लिए कर सकती. बेशक आप अपना फ़ोन स्क्रीनिंग प्रोसेस कर दो, सब कुछ कर दो. मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि लोग कहते हैं कि AI इज़ कमिंग आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. It is. But at the same time, it's not going to come after job opportunities. How is that contradicting? AI is not going to replace a plumber. AI is not going to replace a construction worker. Exactly. AI is not going to replace the guy who's actually maintaining the server room, that is actually powering and controlling the whole process. जो आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे आपके सर्वर्स के अंदर AI का प्रोग्राम रन हो रहा है, मेमोरी स्टोर हो रही है, वर्किंग हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए तो ह्यूमंस हैं ना. AI cannot maintain itself like that. बेशक वो forever चली जाए, अगर पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो AI is gone. AI is dead. It doesn't exist. So capturing these factors, I believe that AI is still within our reach. The only contradicting point I would find is that people are using it to make their decisions now. The danger is that people would be puppeteered from AI. AI आपको बता रहा है कि यार इस स्टोर पे जाओ, आप उससे पूछो यार मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाना है, मैं किधर जाऊँ. ठीक है, फीस सेंटर में फलां दुकान है, रूम नंबर 13 है, आप उधर चले जाओ, जाके ठीक करवा दो. एंड यू वुड एक्चुअली फॉलो दैट. और आपका जब काम हो जाएगा हो, आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी, आप कहोगे हाँ मेरा काम तो हो गया, आई एम गोना आस्क दिस मोर क्वेश्चंस एंड देन इट वुड गवर्न योर डिसीजंस. दैट इज द रियल डेंजर दैट्स कमिंग अहेड. Okay, so we have to conclude this podcast now. Thank you so much for coming to this podcast, Mr. Zanbeg, and hopefully we'll be producing even more podcasts and regarding the HR professionals and their experiences and their success stories. So, work and wisdom, signing out.